السلام علیکم ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیجیٹل تحقیق۔ ہم سرخی مائل اس گول سے پتھر کے سامنے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان رات کی تاریکی میں آسمان کو دیکھتا تو اسے ستارے ٹھہرے ہوئے لگتے، لیکن وہ حیران ہوتا کہ ان اربوں چمکتے ستاروں سے بھرے ٹھہرے ہوئے آسمان میں 5 ستارے ایسے کیوں ہیں جو ٹھہرے ہوئے نہیں بلکہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ دراصل ستارے نہیں، سیارے تھے، لیکن اس وقت کا انسان ستاروں اور سیاروں میں زیادہ تمیز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ انہیں 5 آوارہ گرد ستارے یا چلتے پھرتے ستارے کہنے لگا۔ لیکن ان آوارہ گرد ستاروں میں سے بھی ایک ستارے کو وہ خاص اہمیت دیتا تھا۔ 4000 سال پہلے دریائے نیل کے کنارے رہنے والے مصری جب اس سیارے کا ذکر کرتے تو کہتے، وہ جو سرخ سرخ چمکتا ہے نا، اس کے صدیوں بعد بابل یعنی وہ علاقہ جہاں آج عراق ہے، وہاں دریائے دجلہ الفرات کے کنارے رہنے والا انسان اسے مور کہتا تھا کیونکہ اس کا رنگ سرخ تھا۔ آج سے 2000 سال پہلے رومنز نے اسی آوارہ گرد ستارے کو جنگ کے دیوتا کے نام پر مارس کہنا شروع کیا، اور جس مہینے میں وہ اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے جنگیں کرتے تھے، اسی مہینے کو جنگ کے اسی دیوتا مارس کے نام پر وہ مارچ کہنے لگے۔ تب سے اب تک سال کے تیسرے مہینے کا نام مارچ ہی ہے۔ ہم اس سیارے کو مریخ کہتے ہیں۔ کیا مریخ پر کبھی کوئی انسانی تہذیب آباد تھی؟ کیا مریخ پر بہتے دریا اور سمندر ہیں؟ انسان ہزاروں سال سے اپنی آنکھوں سے آسمان کے سیارے اور ستارے دیکھ رہا تھا، اپنے خیال میں وہاں رہنے والی دیوتاؤں، خداؤں، دیویوں کی کہانیاں بھی بنا رہا تھا کیونکہ وہ انہیں دور سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک اینک ساز نے، گوگلز بنانے والے نے کچھ ایسا کیا کہ یہی سیارے پہلے سے بڑے نظر آنے لگے۔ 1608 کی بات ہے کہ ایک ولمدیزی یعنی ہائی لینڈ کے رہنے والے اینک ساز نے شیشوں کو ایک ٹیوب میں اس طرح ترتیب دیا کہ ہر چیز 3 گنا بڑی دکھائی دینے لگی۔ یہ ٹیلی اسکوپ کی ابتدائی شکل تھی۔ اس کے اگلے ہی برس اٹلی کے گیلیلیو گیلیلے نے دوربین کو اور بہتر کر دیا۔ اس نے گلاسز کو ذرا بہتر ترتیب دی۔ اس کے سیٹ کیے ہوئے گلاسز کسی بھی چیز کو 3 گنا نہیں 20 گنا بڑا دکھاتے تھے۔ اب وہ وقت قریب آ گیا جب یہ جانچنا آسان ہو گیا کہ واقعی آسمان کے ستاروں اور سیاروں پر کوئی دیوی دیوتا ہوتے ہیں، یا پھر یہ لمبی اندھیر راتوں میں کہیں گئی کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ ثابت ہونا تھا، لیکن اس میں 1 صدی اور لگ گئی۔ ہوا یہ کہ 1 صدی بعد 1780 کے قریب جرمنی میں ایک میوزیشین ولیم ہرشل لندن آیا۔ وہ دن میں میوزک کنسرٹس کرتا، موسیقی پڑھتا، لیکن رات بستر پر لیٹ کر ستاروں اور سیاروں پر لکھی کتابیں پڑھتا۔ میوزک اس کا روزگار تھا، لیکن ایسٹرونومی اس کا جنون تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت کی ٹیلیسکوپ کو اور بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ ولیم ہرشل نے اس میں گلاسز کی ترتیب اور تکنیک کو بہت زیادہ بدل دی۔ اس نے 40 فیٹ اونچی 48 فیٹ چوڑائی والی نئی ٹیلیسکوپ بنائی۔ اس دیو ہیکر ٹیلیسکوپ نے جب کام شروع کیا اور اس سے مریخ کا مشاہدہ کیا گیا تو ہرشل کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سرخ دکھائی دینے والے مریخ پر تو سفید برف چمک رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ مریخ کے قطبین یعنی پولز پر برف کے جزیرے ہیں، اور وہ اپنی جہازی دوربین سے برسوں مریخ کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اسے پتا چلا کہ گرمیوں میں یہ برف پگھلنے لگتی ہے اور سردیوں میں پھر فریز ہو جاتی ہے، جس سے برف کے جزیروں کا سائز چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے مریخ پر اونچے پہاڑ اور دروں جیسی لکیریں بھی دیکھی۔ وہ سمجھ تو نہ سکا کہ یہ لکیریں کیا ہیں، لیکن اسے شک گزرا جس نے کھیتی باڑی کے لیے نہریں بنا دی ہیں۔ اسے تو صرف شک گزرا تھا اور بات ختم ہوگی، لیکن 1911 میں خلائی تحریک کا ایک بڑا دھماکہ ہو گیا۔ ایک ماہرین فلکیات ایسٹرونومر نے مریخ پر انسانوں سے زیادہ ذہین زندگی کی ایک شکل کو دریافت کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ 1911 میں ایک میتھمیٹیشین ایسٹرونومر پروفیسر پرسیول لائن نے دعویٰ کر دیا کہ مریخ پر انسانوں سے بھی زیادہ جینیس لوگ رہتے ہیں۔
वहाँ एक पूरी इंसानी तहजीब आबाद है। ये एक गैर मामूली ऐलान था और ये तो असूल है कि अगर ऐलान गैर मामूली पड़ा होगा तो इसका सबूत भी गैर मामूली ही चाहिए। किस्से कहानियों से इतने बड़े दावे नहीं माने जा सकते, लेकिन प्रोफेसर परसीवन ने इसका जो प्रूफ दिया वो ये था कि इन्होंने 2 साल मरीख की सतह का, उसकी सरफेस का मुशाहदा अपनी दूरबीन से किया है, जिसमें इन्होंने देखा कि वहाँ 2 लंबी ऐसी लकीरें उभर आई हैं जो इनके ख्याल में नहरें हो सकती हैं। इन्होंने दावा किया कि ये नहरें 20-20 मील चौड़ी और 1000 मील लंबी हैं। इन नहरों से मरीखी इंसान खेती बाड़ी और ट्रांसपोर्ट का काम लेते हैं। इतनी बड़ी नहरें बनाना और वो भी इतने कम वक्त में, ऐसा कारनामा था जो इनके ख्याल में इंसानों से कहीं ज्यादा ज़हीन लोग ही सरअंजाम दे सकते थे। इसलिए मरीख पर हो ना हो जरूर कोई ज़हीन तरीन लोग रहते हैं। प्रोफेसर परसिवल की इस दरियाफ्त ने उन्हें शोहरत तो बहुत दी, ड्राइंग रूम और बाजारों में ये बात डिस्कस भी खूब हुई, उनका नाम भी फैला, लेकिन इस बात को कबूलियत नहीं मिली क्योंकि उनके नहरों और ज़हीन इंसानों वाले दावे बाकी साइंसदानों की तहकीकात से साबित नहीं हो रहे थे, बल्कि चंद ही बरसों में प्रोफेसर परसिवल की दरियाफ्त और दावे बिल्कुल गलत साबित हो गए और पता चला कि उनका ये अंदाजा गलत फहमी पर मबनी था। मरीख पर जो लंबी लाइन उस प्रोफेसर को नहरों जैसी लगी थी वो दरअसल लकीरें थी जो मरीख की सतह पर बर्फ के नीचे पानी पिघलने से बनी थी। ये लकीरें आज भी मरीख पर बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन नॉवेल्स और सिनेमा घरों में ये कहानी कुछ अरसा पहले से ही सुपर हिट साबित हो चुकी थी। ये आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि लोग एक दूसरे से गप लगाते कि मरीख पर कौन रहता है, वो कैसे लोग होंगे, उनका महज़ब क्या होगा, और सबसे बढ़कर लोग एक दूसरे से ये पूछते कि कहीं मरीखी इंसान जमीन पर हमला तो नहीं कर देगा। इसी ख्याल को अमेरिकन नॉवेलिस्ट H.G. वेल्स ने भी अपने नॉवेल्स के जरिए परवान चढ़ाया। ये नॉवेल्स था वार ऑफ द वर्ल्ड। इसमें मरीख से एक खलाई मखलूक जमीन पर हमला कर देती है। ये उस दौर की सुपर हिट कहानी थी। उसने मरीख पर इंसानी तहजीब के किस्सों को पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बना दिया। आपने टार्जन की कहानी तो जरूर पढ़ी होगी, तो टार्जन का किरदार तख्लीक करने वाले एडगर राइस ने इस ख्याल पर एक और सीरीज बना डाली जिसमें अमेरिकी सिविल वार के हीरो जॉन कॉटन को मरीख पर भेजा जाता है। वो मरीख पर जाकर जंग करता है, मोहब्बत करता है और मरीख की सियासत में भी हिस्सा लेता है। ये उस वक्त की मकबूल तरीन नॉवल सीरीज बन जाती है। मरीख से मुतल्लक कहानियां उस दौर में इतनी मकबूल हुई कि पहले रेडियो और फिर सिनेमा स्क्रीन पर छा गई। अमेरिका रूस में उस वक्त भी एक गैर एलानिया मुकाबला हर चीज में जारी था और ये मुकाबला महज हथियारों ही में दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं था, बल्कि वो दोनों ताकतें रूस और अमेरिका साइंस, रिसर्च और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए सरतोड़ कोशिशें करते रहते थे। तो मरीख पर फिल्म बनाने की रेस में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। रूसी फिल्म इंडस्ट्री ने 1924 में क्वीन ऑफ द मार्स फिल्म बनाई, जबकि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड ने मरीख पर पहली फिल्म 1930 में बनाई। तो ये तो थे कहानियां, लोग सुनते, इंटरटेन होते और भूल जाते, लेकिन कहानियों से आगे निकलकर रूस और अमेरिका में साइंसदान वाकई मरीख पर स्पेस क्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहे थे। और जहन में रखिए ये दौर है आज से 100 साल पहले का, 1920 के आसपास का, जब अभी टेलीविजन भी इजाद नहीं हुआ था। तो उस वक्त की जारी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने 1964 में पहली बार एक डेडिकेट फ्लाई बाय मिशन जिसका नाम मरीनर 3 था, उसे मरीख पर भेजने का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। मतलब ऐसा मिशन जिसमें स्पेस क्राफ्ट ने मरीख पर लैंडिंग नहीं करना थी, उसे मरीख पर उतरना नहीं था, मरीख के गिर्द चक्कर भी नहीं लगाना थे, बस उसके करीब से होकर गुजरना था, यानी जम करके। लेकिन इस दौरान उसे करीब से मरीख की सतह की तस्वीर लेना थी और इन पिक्चर को जमीन पर बेचना था और फिर खुद आगे निकल जाना था। बेकरार और ना खत्म होने वाले खला में स्पेस क्राफ्ट को कहीं खो जाना था। लेकिन फिर क्या हुआ वही जो बड़े बड़े ख्वाबों के शुरू में अक्सर हो जाया करता था। मिशन लॉन्चिंग में ही
ही फेल हो गया। मरीनर 3 ने परवाज तो की लेकिन इतनी कम स्पीड से कि अगर ये उड़ता रहता तो लाखों किलोमीटर के हिसाब से मरीख को मस कर जाता, और इसके पार्ट्स ने भी शुरू ही से सिग्नल भेजना बंद कर दिए। ये मिशन लॉन्चिंग के 8 घंटे बाद ही टर्मिनेट कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। लेकिन वो इंसान ही क्या जो हार मानकर बैठ जाए। आखिर इंसान ने सदियों बर्फानी गारों में रहकर बर्फानी दौर को शिकस्त दी थी। वो अफ्रीका के सहराओं को अबूर कर आया था, वो समुंदर को पार कर चुका था। तो ये स्पेस, ये खिला आखिर कब तक उसके सामने ठहरती। नासा ने उसी साल नवंबर में मरीनर 4 भेजने का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया और ये मिशन कामयाब रहा। इंसान पहली बार मरीख को करोड़ों किलोमीटर दूर से नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 किलोमीटर करीब से देख रहा था, इसकी तस्वीर बना रहा था। मरीनर 4 ने अपने मिशन में 21 तस्वीर जमीन पर भेजी और आगे लामतनाही खला में निकल गया। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी मिशन में 1965 और 66 के दरमियान में मुख्तलिफ औकात में भेजी हैं। ये तस्वीर तो कामयाबी थी, लेकिन इन तस्वीर ने एक मसला भी पैदा कर दिया था। वो ये है कि साइंस फिक्शन और कहानियों और हजारों सालों की देव मलाई दास्तानों की वजह से इंसान के जहन में जो उम्मीद जागी थी कि शायद मरीख वो स्यारा हो जहां हम जैसा कोई रहता हो या जिंदगी की कोई शक्ल मौजूद हो, यह उम्मीद टूट गई। मरीख से आने वाली इन तस्वीर में गड़े थे बाटियां, सुरख स्यारे पर उठते तूफान थे, लेकिन जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। लेकिन हो सकता है अमेरिकी स्पेस शटल को मरीख पर जिंदगी ना मिली हो तो रूसी खलाई शटल को मिल जाती। सोवियत रूस ने इससे पहले यही जानने के लिए 1960 में फ्लाई बाय मिशन मरीख पर भेजने का ऐलान किया था, लेकिन ये मिशन फेल रहा। ये भी लॉन्चिंग पर ही नाकाम हो गया था, मगर रूस ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने दूसरा मिशन भेजा, ये भी नाकाम रहा। तीसरा भी फेल हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां भी नाकाम ही हुआ। फिर साल आया 1971 और महीना था मई का। मरीख की तरफ 2 स्पेस क्राफ्ट तेजी से उड़ते हुए चले जा रहे थे। दोनों में मुकाबला था कि कौन मरीख के गिर्द चक्कर लगाने के लिए पहले पहुंचता है। ये रूस का मार्स 2 और एक अमेरिका का मरीनर 9 था। ये रेस अमेरिका जीत गया। अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट सोवियत रूस के स्पेस क्राफ्ट से सिर्फ 2 हफ्ते पहले मरीख के करीब जा पहुंचा। ये इंसान का पहला मिशन था जिसे मरीख के पास से नहीं गुजरना था बल्कि मरीख के गिर्द चक्कर लगाना। यानी ये फ्लाई बाय नहीं, ये एक और बेटर मशीन था। लेकिन देखें किस तरह मरीख इंसान की एडवेंचर नेचर का इम्तहान ले रहा था। हुआ ये कि जब रूस और अमेरिका के खलाई मिशन सुर्ख स्यारे के गिर्द चक्कर लगाने के लिए तैयार थे तो मरीख पर गर्द का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ऐसा तूफान जिसने कुछ ही देर में पूरे मरीख को घेर लिया था। सुर्ख नारंगी और स्याह गर्द की एक मोटी तह मरीख से लिपट चुकी थी और इसकी वजह से मरीनर 9 और मार्स 2 दोनों स्पेस क्राफ्ट मरीख की सतह की सरफेस की कोई पिक्चर नहीं बना सकते थे। दोनों को तूफान के थमने का इंतजार करना था, लेकिन मसला ये था कि दोनों के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो तूफान के रुक जाने का इंतजार करे, क्योंकि दोनों में पावर महदूद वक्त के लिए थी, लिमिटेड बैटरीज थी। अगर तूफान हफ्तों तक जारी रहता तो ये दोनों मिशन भी अपने बुनियादी मकसद यानी मरीख की तस्वीर लेने और वहां जिंदगी की तलाश में नाकाम रहते। तो फिर क्या हुआ? ये दोनों नाकाम रहे। हुआ ये कि अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट ने अपने इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिए और पावर सेव कर ली ताकि जब तूफान थमे तो तस्वीर बनाई जा सके। लेकिन रूसी स्पेस क्राफ्ट ऐसा ना कर सका, चुनाचे उसकी पावर मरीख पर तूफान थमने से पहले ही थम गई थी। हफ्तों बाद तूफान थमा, मरीनर 9 ने अपने लात फिर से एक्टिव किए और जो तस्वीर बनाई उन्होंने पहले देखे गए मनाजर से भी ज्यादा शानदार मंजर दिखाए। मरीख पर वाकई बहते दरिया जैसी लंबी लंबी लकीरें बिछी हुई थी। मरीख की सतह पर एक बहुत बड़ा पहाड़ भी था जिसकी बुलंदी जमीन पर मौजूद सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा थी।
माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 8,848 मीटर है, जबकि मरीख पर जो जमीन से तकरीबन आधा स्यारा है उस पर मौजूद इस पहाड़ की बुलंदी 22,000 मीटर है। उसे माउंट ओलंपस या ओलंपस मांस का नाम दिया गया। इस मिशन में मरीख पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की तस्वीर भी बनाई। ये गाड़ियां मीलों तक फैलती चली गई थी। ये देखने में बिल्कुल ऐसी थी जैसे अमेरिकी रियासत एरिजोना में ग्रैंड कैनियन। मरीना 9 मरीख पर इंसान के ख्वाब का पहला कामयाब तजर्बा था। मरीना 9 एक तरह अंदाजों से ज्यादा कामयाब रहा और एक तरह नाकाम। कामयाब यूं हुआ कि इसने अपने मिशन के दौरान मरीख के गिर्द चक्कर लगाते हुए 7,300 तस्वीर जमीन पर भेजी। ये इतनी ज्यादा तस्वीर थी कि जिनसे मरीख की पूरी सतह का एक इनिशियल मैप, इब्तदाई नक्शा सा बन गया। लेकिन नाकाम इस तरह के ये अपने अहम तरीन ऑब्जेक्टिव यानी मरीख पर जिंदगी की तलाश में नाकाम रहा था। उसे मरीख पर किसी जिंदगी का कोई सुराग नहीं मिला था, तो इंसान अब नाउम्मीद नहीं था। उसने मरीख के और भी करीब होने की ठान ली। उसके पास से गुजरने या उसके गिर्द चक्कर लगाने से भी ज्यादा करीब। अब इंसान मरीख पर उतरने के ख्वाब देख रहा था ताकि मरीख पर जिंदगी की तलाश और अच्छे तरीके से कर सके। और फिर 1975 में इंसान का ये ख्वाब पूरा हुआ। आपने स्कैंडिनेवियन कंट्री के उन वाइकिंग की कहानियां जरूर सुनी होंगी या हिस्ट्री टीवी की वाइकिंग सीरीज जरूर देखी होगी, जिसमें शुमाली यूरोप के हमलावर नीचे की तरफ नई आबाद दुनियाओं की तलाश में आते थे। तो इसी नाम पर ये स्पेस क्राफ्ट वाइकिंग 1 और 2 बनाए गए। इन्हें मरीख पर उतरना था, लैंड करना था, जिंदगी को तलाश करना था और ये देखना था कि क्या हम मरीख पर कभी रह सकते हैं, क्या ये हमारा दूसरा घर हो सकता है, या फिर क्या यहाँ कभी कोई इंसान नुमा जिंदगी या कोई भी जानदार रहता था। 20 अगस्त 1975 अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा इसे वाइकिंग मिशन मरीख की तरफ लॉन्च किया गया और 11 माह बाद 19 जुलाई वाइकिंग मरीख के करीब पहुंच गया। वो सुरख स्यारे की सतह पर उतरने के करीब था कि उसे रोक दिया गया, क्योंकि वाइकिंग मिशन के कैमरे दिखा रहे थे कि जिस जगह वो लैंड करने वाला है वहाँ पत्थर बहुत ज्यादा है। यहाँ लैंड होने के बाद वाइकिंग की वो कार नमा गाड़ी नहीं चल पाएगी जिसने मरीख पर तजुर्बात करने हैं। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।